I started my journey of aesthetics 3 years ago. I'm a diplomat of aesthetics from UK, trained by Dr. Christine and Dr. Bilal Malik, one of the two big names of dentistry and aesthetics. My main goal to enter aesthetics was I was always fond of having a smile makeover for my patients, in which I wanted to give them scaling, polishing, how to correct the crooked teeth, laser whitening. And then I jumped into lip fillers and fixing the nasolabial folds with Botox threads, chin augmentation with Botox, and this is how my smile makeover journey made me enter into aesthetics. The sole reason for entering dentistry and aesthetics was to see happy smiles. A dentist creates the most happy smiles in people, and with aesthetics incorporated in it, we can see people having their confidence back and the glow on their faces. So the best part about having dentistry and aesthetics was to see people glowing with happy smiles. The challenges that I face in aesthetics right now are none except a little bit of education to the people to understand the difference between esthetician, dermatologist, cosmetologist, and a beautician. The best part in aesthetics is the latest technology which I work on, which is stem cells. Stem cells आपकी body के अंदर enter होते हैं and then they work against the dormant cells. Dormant cells are the cells which are already sleeping in the body and they activate your skin cells or hair cells and other body cells for regeneration and rejuvenation. जिस तरह हम PRP करते हैं, इसी तरह हम exosomes आपकी body में enter कराते हैं और वही आपकी facial rejuvenation skin के लिए या wrinkles को ठीक करता है. इसी तरह hair growth के लिए बहुत ज़रूरी है exosomes and stem cells, which is the new innovation that I work on. I've also been awarded by the Youth Empowerment Program an award for the stem cell functions that I'm doing. And I have been presenting stem cells to people to create awareness in Health Asia Conference as well as DTMA. Aesthetics के हवाले से मुझसे जो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं वो यही है कि एस्थेटिक्स और दूसरे प्रोसीजर्स के अंदर क्या डिफरेंस है. एस्थेटिक्स में खाली बोटॉक्स फिलर्स नहीं होते बल्कि द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट. मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ स्टेम सेल्स के ऊपर जो आपकी बॉडी से खुद ब खुद रिवाइव करते हैं आप सोए हुए सेल्स को और उनको एक्टिवेट करते हैं. इसलिए हमें बोटॉक्स फिलर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं अगर आपके अपने सेल्स काम करें. The second most important that I work on is having wellness of the body, which includes different types of drips. IV wellness जो मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ उसमें इंक्लूड होता है ग्लूटाथियोन की डिटॉक्सिफिकेशन, विटामिन C का ग्लो, विटामिन B3, B12 and B6 and some other cocktails. The most important is Myers cocktail जो कि हमारा एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ सीरम्स का जिसमें विटामिन C शामिल होती है और ग्लूटाथियोन. बाकी मुझसे मिथ्स पूछे जाते हैं स्किन के तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग ये कहें कि स्टेम सेल्स एक दिन के अंदर काम कर सकते हैं, दैट्स अ मिथ. कोई भी चीज़ आपकी 1 से 2 दिन के अंदर नहीं करती है. इट टेक्स टाइम. बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स जाके काम करने के लिए उनको एटलीस्ट 4 वीक्स से 6 हफ्ते लगते हैं, 4 to 6 weeks, and then they multiply and start working inside the body. Nothing is a miracle. The second myth that I would like to bust is when people say whitening drips यानी गोरा होने की drips. ऐसी कोई drips exist नहीं करती हैं. ग्लूटाथियोन drips को whitening drips कहा जाता है जो कि liver की सिर्फ detoxification के लिए काम करता है, whitening के लिए exactly नहीं. My concept of beauty is nothing related to the skin color or wrinkles. My concept of beauty is a person having the confidence enough to lighten himself or herself in the crowd. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप फिर महफिल में हमेशा अच्छे लगेंगे. कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स को बहुत ज़्यादा हाई मानते हैं. अगर फॉर एग्जांपल किसी इंसान के बाल नहीं है, ही इज़ बैड, और हम स्टेम सेल्स के थ्रू उसके हेयर ग्रो करेंगे तो यू कैन नॉट इमेजिन द डिफरेंस ही हैज़ इन हिज कॉन्फिडेंस बिटवीन अ बैड एंड अ हेडी पर्सन. इसी तरह जिन ख़वातीन के अंदर रिंकल्स होते हैं या अपने फेस को थोड़ा सा रिजुविनेट करना चाहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आता है जब हम एस्थेटिक्स करते हैं. So to me, beauty is all about confidence and which we attain by good dental procedures and by good aesthetic procedures. The most important tip जो अपने पेशेंट्स को मैं हमेशा देना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम एस्थेटिक्स के लिए विजिट कर रहे हैं
कि आइदर आप किसी सैलून जाएं या क्लिनिक, प्लीज मेक श्योर कि एक प्रॉपर एस्थेटिशियन ही आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। लेजर्स इज नॉट अबाउट लेजर फ्रीक्वेंसी बट द हैंड दैट इज डूइंग इट। सेम इज द PRP। आपके PRP के लिए जो हम डर्मापेन यूज करते हैं, हमेशा मेक श्योर कि जो उसके ऊपर की नीडल्स हैं वो अराउंड 16 और 32 और 28, हर दफ़ा वो नीडल्स चेंज हो रही हों डर्मापेन, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, उसी तरह जिस तरह हम किसी सिरिंज को यूज़ करते हैं। प्लस ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी जो डेप्थ है फॉलिकल्स हेयर की, उसके मुताबिक आपकी PRP की नीडल्स की डेप्थ होनी चाहिए। आई हैव ऑफन सीन पीपल ड्रैगिंग द डर्मापेन ओवर द हेयर और द स्किन। उनकी जो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, जब वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर फंसती हैं, हेयर फॉलिकल्स को फर्दर डैमेज करती हैं। इसी तरह स्किन के ऊपर भी हम कभी कोर्स मटेरियल यूज़ नहीं करते, जैसे कोई हार्श सोप या एप्रिकॉट स्क्रब हम फेस पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो ग्रैनुलर होता है, उस फेस पे स्क्रैचेस लाता है। आई हैव ऑफन सीन दैट पीपल आर एक्चुअली ड्रैगिंग, व्हिच इज़ नॉट द राइट वे। बेस्ट वे फॉर डर्मापेन इज टू स्टॉम्प। हम बहुत तेज़ी से स्टॉम्पिंग टेक्निक से सिर्फ उनको इंजरी देते हैं, क्योंकि स्लाइट इंजरी से आपका जो सीरम है या एक्सोसोम्स है वो अंदर परफोरेट होता है, और स्लाइट इंजरी के बाद आपकी बॉडी खुद ब खुद कोलेजन प्रोडक्शन पे जोर देती है। द मेन रीजन इज टू क्रिएट अ इंजरी एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय द स्किन टेक्सचर एज वेल। तो हमेशा मैं ये चाहूँगी कि लोग इस बात का ख्याल रखें कि किस टेक्निक के साथ आपके ऊपर आपकी PRP की जा रही है, यानी माइक्रो नीडलिंग की जा रही है, और किस तरीके से और कौन इंसान। My personal goals as an esthetician is to make people aware of working on their well-being. मैं as an esthetician लोगों की well-being पे इस तरह काम करती हूँ कि उनकी अपनी बॉडी रिजुविनेट या रिजनरेशन की तरफ जाए। स्टेम सेल्स आपकी अपनी बॉडी के अंदर हम एक दूसरे सेल्स डालते हैं जो बॉडी के अंदर से सारे खराब या डोरमेंट सेल्स को ख़त्म करते हैं और आपकी इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव बनाते हैं। इसी तरह आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है वेलबींग यानी न्यूट्रिशन। IV न्यूट्रिशन थेरेपी को हम इनकलकेट करते हैं एस्थेटिक्स के अंदर, जिसमें हम देते हैं विटामिन C, विटामिन B, ग्लूटाथियोन। अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि एडिबल टैबलेट्स हम लेते हैं विटामिन C की, जबकि मैं प्रेफर करती हूँ विटामिन C IV तरीके से दें। उसका रीज़न सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर मैं ये जानती हूँ कि 1000 फॉर एग्जांपल मिलीग्राम पे ऑफ विटामिन C मुझे एक डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल है, जब बंदा एडिबल ले रहा है तो आई डोंट नो कि कितना उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ और कितना उनका एक्सक्रीट आउट हुआ। जबकि IV जब मैं दे रही हूँ तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर 200 में दे रही हूँ तो इट इज़ इन द ब्लड। तो कैलकुलेटेड अमाउंट्स के साथ काम करने से एज एन एस्थेटिशियन हमें ये पता होता है कि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को कब हासिल कर सकते हैं। सो आई बिलीव दैट एस्थेटिक्स इज नॉट अबाउट ओनली बोटॉक्स एंड फिलर्स, इट इज़ मोर अबाउट योर वेल बीइंग, जिसमें हम स्टेम सेल्स के ऊपर, माइक्रो नीडलिंग के ऊपर, PRP के ऊपर, जिसमें आपका अपना ब्लड हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, जस्ट टू गिव दैट एनहांसमेंट टू योर स्किन। इसके ऊपर ज़्यादा काम करें। एंड माई ओन गोल इज टू inculcate dentistry with aesthetics to enhance the facial features as well as smiles of the patient to increase their confidence level. बाकी my last message would always be कि stem cells के ऊपर थोड़ा सा हम भी एक नई टेक्निक आई है in पाकिस्तान। I would always prefer प्लीज़ आप लोग आइए। स्टेम सेल्स के साथ ना सिर्फ हेयर और बालों को, स्किन को ट्रीट करते हैं, हम बॉडी की हर चीज़ को, जैसे आज़मा, COPD यानी सांस की तकलीफ, पैरों की तकलीफ जो कि आर्थराइटिस कहलाती है, यहाँ तक कि बच्चों के ऑटिज्म को भी ठीक कर सकते हैं। स्टेम सेल्स आपकी बॉडी से हर तरह के कैंसर को भी खत्म करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, खाली एस्थेटिक्स की तरफ बल्कि हर तरह की ट्रीटमेंट्स रीजेनरेटिव मेडिसिन से कीजिए, विच इज स्टेम सेल्स, रादर देन फार्मास्यूटिकल दवाई या मेडिसिन। Baki, I am extremely thankful to Nissa for Women, the most humble person, Mrs. Naghma Aqil, for providing me the platform to propagate all of this information with all of you, ताकि जिस तरह के भी सवालात हमारी लेडीज़ और ख़वातीन हमसे पूछ नहीं पाती, हम उनको ये सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। Thank you so much, Ms. Naghma Aqil and the team, as well as Nissa for Women, for providing the platform. My best wishes to all of you for further success. Thank you.